What is this 2 डिग्री सेल्सियस, what is sustainability या नेट जीरो? जी गोल हमारा यही है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि दुनिया कायम रहे, दुनिया में जो जिस प्रकार से हम लोग यूज टू हैं, इस प्रकार से क्लाइमेट आपकी और हमारी जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज तबाह कर सकता है। कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे वांट टू स्टार्ट देयर डीकार्बोनाइजेशन जर्नी और दे वांट टू बिकम नेट जीरो, सो हाउ विल दिस जर्नी बी? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप बता सकते हो। एसेंशियली द की इज इनोवेशन। आप इनोवेट कीजिए, जो भी आप बना रहे हैं वो बिकेगा। अगर एट द एंड आपका कॉस्ट इज लेवलाइज्ड, कॉस्ट इज द सेम और लेस। आपने भी हाइड्रोजन पे काफी काम किया है, क्यों ये बेटर है एनवायरनमेंट के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और एनीथिंग? देखिए, हाइड्रोजन को अगर आप यूज करें तो जलाते हैं और हीट मिलती है, तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है वाटर, H2O, और तो कुछ निकलता नहीं। ये बड़ा फायदेमंद है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तब नहीं निकलेगी जबकि इसको बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू 2 डिग्री सेल्सियस. It's a fits all podcast about the change in the environment and sustainability, and in every podcast we would like to bring policymakers, distinguished startups, industries experts who will give you real time insights on how we can change the environment and what change we can bring to the environment with some real time actions and examples. So the podcast name is 2 degrees Celsius, and it's because every degree matters for us. So in today's podcast, we would like to welcome our guest, Dr. Ajay Mathur. He has lot of experience in this sustainability space. He has worked with BE, Bureau of Energy Efficiency. He has worked with TERI, and in last assignment he has worked with International Solar Alliance. I would not like to take much time introducing him, because I think that will take another 30 minutes, 40 minutes to introduce him. From my side, I would like him to only introduce himself, क्योंकि वहाँ पे better introduction आ सकता है. He would like to, whatever is important, he would like to speak about that. Because according to me, मैंने आपका CV देखा, everything is very important. Namaskar, thank you very much, Anand. It's a pleasure to be in this Fits All podcast, 2 degrees Celsius. You know, you're very kind. मैं तो I'm बेसिकली एन इंजीनियर. मैंने रुड़की से इंजीनियरिंग करी थी, अब तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो. आई हैव बीन वेरी लकी. आई हैव फोकस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन एंड ऑन क्लाइमेट एक्शन. बोथ ऑफ दीज टुवर्ड्स अ व्यू ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड मोर सस्टेनेबल. तो कई जगह इसकी कोशिश करी. सबसे पहले मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स और पीएचडी करी इलिनॉय से, और फिर टेरी में आई वाज वर्किंग फॉर सम टाइम, एंड देन आई वाज हेडिंग द वर्ल्ड बैंक्स क्लाइमेट चेंज टीम. उस ज़माने में नई ये बनी थी, और वर्ल्ड बैंक के लिए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ये बनाना इम्पोर्टेंट था. उसके साथ उस समय जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी थी, GEF, that was providing incremental costs. So the bank would provide the funding, the incremental cost would be provided by GEF, and together उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक करता था. और उसके बाद फिर मैं सुज़लॉन, जो विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरर है, उसमें प्रेसिडेंट रहा कुछ दिन. You know, that was a very interesting experience. More than anything else, I realized 2 things. One, businesses want to ensure that their market share keeps increasing. And second, I realized the importance of risk management in corporate world. फिर मैं बहुत साल Bureau of Energy Efficiency के साथ रहा, and that was the time when we introduced for example, the star labeling program, जो कि आप देखते हैं, stars on air conditioners, refrigerators, transformers and so on. We also introduced the Perform, Achieve and Trade program. We introduced the LED bulbs. It was a time when we were able to bring energy efficiency into your home and mine. उसके बाद करीब 10 साल रहने के बाद वहाँ मैं Energy and Resources Institute टेरी में डायरेक्टर जनरल रहा, और फिर उसके बाद
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में पिछले 4 साल एक टर्म मैंने किया एज डायरेक्टर जनरल। अभी मार्च में मेरा टर्म पूरा हुआ। तो all in all, I have been very lucky to have focused on policy, I've focused on actions, I've focused on policy relating to energy efficiency and renewables throughout my career, and that has helped in moving, in my view, the agenda ahead both nationally and internationally. Internationally इसलिए भी because I was lucky enough that for many years I was part of the Indian delegation to the climate change negotiations. उस समय बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हो रहा था कि किस प्रकार से हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, और एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल्स दोनों आर अबाउट टेक्नोलॉजी। एक जो आई थिंक अच्छी चीज़ हुई क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में वाज द क्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म। उसकी वजह से we were able to bring together countries into the climate technology center and network, and that has started providing support to countries across the world. So all of this I think has helped at least me and others in understanding what are the kinds of actions which make sense, जो कि हम कर सकते हैं और जिनकी वजह से क्लाइमेट एमिशंस कम हो जाएं, साथ में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाए या रिन्यूएबल्स बढ़ जाएं, साथ में आपको और मुझे जो लागत आए, जो खर्च होए वो भी कम होए। तो मल्टीपल बेनिफिट्स इज समथिंग दैट आई वुड वेरी मच लाइक टू सी एक्सपैंडिंग not only in India but across the world. So from your introduction itself मुझे 3-4 follow-up questions आए, पर एक-एक करके करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। So we will start with little bit। अभी मैंने जैसे पॉडकास्ट से पहले I was talking about you, आपने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आपने बीच में कुछ बी कीपिंग के लिए भी शुरू किया था। सो इज एनीथिंग कि बी कीपिंग इज इट हेल्पफुल इन इन्वायरमेंट चेक या क्लाइमेट पे असर करता है? व्हाई, मतलब दैट पैशन यू वर ट्राइंग टू फॉलो? बी कीपिंग के 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बी कीपिंग इज वेरी यूजफुल, आप अपना प्योर हनी बना सकते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ी फायदा है। हाँ, पर साथ में bees are a very good indicator of the environmental health yes of particular ecosystems. उसकी वजह से बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन की करके आप जो environment है उसमें देख सकते हैं कि सब कुछ मतलब ठीक ही नहीं है पर बढ़िया है, और साथ में आप जो पॉलिनेशन है उसको हेल्प भी कर सकते हैं। और तीसरा फायदा तो ये ही है कि उसकी वजह से जो फूल होते हैं वो फूल खूबसूरत तो होते ही हैं और साथ में और ज्यादा आपको दिखते हैं। यस मधुमक्खी पालन में मैंने तो सेंट्रल यूपी में करा। एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि गर्मी में क्या करें। तो गर्मी में खैर घोल चीनी का उनको खिलाएं, लेकिन ये भी है कि जिन जगहों पर हम लोग खनन कर रहे हैं, जहाँ पर कि कोल माइनिंग या स्टील माइनिंग कर रहे हैं, वो सब एरियाज में बी कीपिंग भी की जा सकती है। कई साल पहले मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा था कि एपेलेचिया में जो अमेरिका का कोल बेयरिंग रीजन है, वहाँ पर एक आदमी को मधुमक्खी पालन से अधिक पैसा मिलता है बनस्बत एक जॉब उसको अगर कोल माइनिंग इंडस्ट्री में मिल जाए। आंखें खुल गई क्योंकि अरे ये तो एक सोल्यूशन मिल गया। अगर आप लोगों को मधुमक्खी पालन में ट्रेन कर दें, देन यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सस्टेनेबिलिटी भी सॉल्व हुआ, लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हुआ, एंड डेफिनेटली अ गुड सोर्स ऑफ हनी। या सो नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चंस, जो हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे, उनको जानना होगा व्हाट इज दिस 2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी या नेट जीरो। जी, इफ वी कैन लिटिल बिट डिस्कस अबाउट दैट आगे बढ़ने से पहले, ताकि आई थिंक दिस टर्म विल कम अ लॉट इन आवर दिस पॉडकास्ट एंड फ्यूचर पॉडकास्ट ऑल्सो, तो इनके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए 2 डिग्रीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये साइंटिफिकली IPCC ने दिखाया कि किस प्रकार से अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है उससे अगर 2 डिग्रीज से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, इन दैट केस इरिवर्सिबल डैमेज होता है बहुत आसान चीज़ों में, जैसे कि बारिश आपके यहाँ कितनी होगी या गर्मी कितनी पड़ेगी, उसको फिर से आपको वापस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया। गोल है हमारा कि भाई मतलब प्रेफरेंशियली अगर 1.5 पे करते हैं तो और अच्छा है, लेकिन 1.5 में 1.47 1.48 तो ऑलरेडी हो गया है, तो 1.5 तो प्रोबेबली हो ही जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन 2 से तो हम कम रख सकते हैं। तो गोल हमारा यही है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि दुनिया कायम रहे, दुनिया में जो जिस प्रकार से हम लोग यूज टू हैं बारिश किस वक्त, मतलब अगर आप देखें फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि किस वक्त हम फसल लगाएं, किस वक्त उसको पानी और खाद दें और किस वक्त काटें। ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर क्लाइमेट बदलने लगी, जैसे कि पिछले 2-3 साल में बहुत देर में बारिश होती है, अब देर में बारिश होती है तो जो अगर आप धान लगाते हैं तो धान नीचे गिर जाता है बारिश की वजह से, और वो पूरा निकला हुआ धान अब उसको काट नहीं सकते क्योंकि वो नीचे गिर गया। उसकी वजह से द हार्वेस्टिंग इज डिलेड टिल द प्लेस ड्राइज अप। तो जो आपका गेहूं के सोइंग का टाइम है वो निकल गया, अब दिक्कत हो गई। तो ये छोटा सा उदाहरण है किस प्रकार से क्लाइमेट आपकी और हमारी जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज तबाह कर सकता है। गोल हमारा ये है कि किस प्रकार से हम सस्टेनेबिलिटी को चालू रख सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? एमिशंस की वजह से, कार्बन एमिशंस। जब भी हम कोयला जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं, तेल उस जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर रिन्यूएबल्स पे चले जाएं, रिन्यूएबल्स से बिजली बनाएं तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाएं और हाइड्रोजन को फिर एज हीटिंग सोर्स यूज करें तेल की बजाय, तो वो फिर दिक्कत नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास अब ये सॉल्यूशंस निकल के आए हैं। अब दिक्कत यह है कि ये हम जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी, इससे पहले कि जो कमिटेड टेम्परेचर राइज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो हो ही रहा है, वो पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, तो कमिटेड क्लाइमेट चेंज तो है ही है। तो वो कमिटेड क्लाइमेट चेंज किसी भी तरह से 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गोल हमारा ये है। किस प्रकार से ये करें? रिन्यूएबल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब एक जो बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि ये हम कर सकते हैं या नहीं। तो एक ये भी लोगों ने सोचा कि किस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको हम अब्सॉर्ब कर लें, आइदर थ्रू फॉरेस्ट्री और थ्रू अदर मीन्स, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो इसलिए नेट जीरो बोलते हैं, क्योंकि नेट जीरो का मतलब है आपने उत्सर्जन किया लेकिन कुछ कैप्चर किया, नेट आपका जीरो रहा। गॉट इट। तो मेरा अपना ये विचार है कि अगर हम लोग बिना नेट जीरो की तरफ जाए, एक्चुअल जीरो की तरफ जाए, वो कहीं ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू नेट जीरो। डेफिनेटली आई थिंक ये काफ़ी बेसिक में आपने समझा दिया। बट एक चीज़ जो व्हाट वी हैव नोटेड अभी इंडिया का खास करके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पिछले आई थिंक लास्ट फ्यू इयर्स सोलर से जो हो रहा है पावर जनरेशन, आई थिंक इट हैज़ इंक्रीज अ लॉट, करेक्ट? एंड सो हाउ डज दिस, जो आप पहले थे इंडियन सोलर अलायंस, हाउ डज इट प्ले द रोल और इम्पैक्ट इन दिस सोलर एनर्जी की जनरेशन जो इंडिया में काफ़ी बड़ी है,
Is it something related to that, or has it because solar has become cheaper compared to जो 5-6 साल 7 साल पहले था solar energy production? Is it become ROI is better now compared to previous years? That's why adoption मैं देख रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है. So I was reading some data. I think almost more than 200 gigawatts of energy is getting produced by renewable and mainly through solar. And उसका भी काफ़ी aggressive target government ने ले रखा है मेरे ख्याल से आगे के लिए भी. So what is the reason? Can you say? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जितने ज़्यादा इसका दाम कम उतना ज़्यादा ये लोग अडॉप्ट करते हैं. इसमें तो कोई शुबा नहीं. लेकिन सवाल ये भी किया जा सकता है कि दाम कम क्यों हो रहा है. दाम इसलिए कम हो रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं. तो इट्स अ सर्कुलर साइकिल. ओके. हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि अब से करीब 10 साल पहले ख़ास तौर से जर्मनी ने बहुत सब्सिडीज दी थी जिस फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन. सब्सिडीज वर समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 60 यूरो सेंट्स पर किलोवाट आवर. हम लोगों के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली का कोयले से वो 5 यूरो सेंट है पर किलोवाट आवर, और वो 60 यूरो सेंट पर किलोवाट आवर सब्सिडी दे रहे थे. उसकी वजह से एक ग्लोबल मार्केट बन गया. उसकी वजह से पीपल इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग. उसकी वजह से जो दाम है सोलर का वो कम होता चला जा रहा है. और आज ये हाल है कि मेरे ख्याल से दुनिया के हर कोने में, हर देश में जो सोलर से बिजली बन रही है या विंड से बिजली बन रही है, इट इज द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सन इज शाइनिंग और द विंड इज ब्लोइंग. हाँ, और समय खासतौर से रात में दिक्कत होती है. इसलिए जरूरी है कि हम स्टोरेज कैसे करें रात के लिए. जैसे बैटरी में स्टोरेज करते हैं या पंप्ड हाइड्रो के थ्रू स्टोरेज करते हैं. आनंद, एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं दे ऑलरेडी हैव इनफ कैपेसिटी टू मीट द पीपल्स नीड्स. तो अगर दिन में हमने सोलर इस्तेमाल कर लिया तो रात में जो अभी गैस है या कोयला है उससे के थ्रू बिजली प्रोवाइड कर दी. डेवलपिंग कंट्री में दिक्कत ही दूसरी है. डेवलपिंग कंट्री में डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द डे एंड इट इज इंक्रीजिंग एट नाइट. तो अब से जो 4 साल बाद जो डिमांड होगी इट विल बी मच मोर देन टुडे. यानी कि आपकी आज की कैपेसिटी, इवन इफ यू आर एबल टू मीट द डिमांड टुडे, वी आर नॉट एबल टू, बट सपोजिंग यू आर एबल टू मीट योर डिमांड, वो तो कम पड़ जाएगी. तो जो बिजली वाले हैं वो आके कहते हैं कि साहब बड़ा अच्छा है, आप कहते हैं सोलर लगाओ. सोलर तो दिन में बिजली देती है, रात में क्या करेंगे? रात के लिए कोयला लगाएंगे. तो हम दिन के लिए सोलर और रात के लिए कोयला, ये तो कोई तुक नहीं बैठती, क्योंकि कोयला जो वो दिन में भी हमें बिजली दे देगा. इसीलिए भारत और अन्य विकासशील देशों में आवश्यक है कि हम लोग स्टोरेज पर भी उतना ही ध्यान दें. पिछले ही साल में, सो इट्स वेरी रिसेंट, पिछले साल में 4 ऐसे टेंडर हुए हिंदुस्तान में. 2 रेलवेज एनर्जी कॉरपोरेशन के, एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन का, एक एनटीपीसी का, जिसमें 24 घंटे बिजली, राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो फाइंड किया गया वो 5 रुपए पर किलोवाट आवर से कम था. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी दौरान जो कोयले से नए प्लांट्स बने उनके दाम बिजली के 5 रुपए पर किलोवाट आवर से ज़्यादा है. ओके. तो जो रिन्यूएबल्स के थे, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल्स के, उसमें उन्होंने सोलर यूज़ किया, उसमें विंड यूज़ किया, और सोलर और विंड दोनों यूज़ करने की वजह से जिस समय के लिए उनको बैटरी लगानी पड़ी वो कम हो गई. तो सोलर और विंड और बैटरी तीनों मिला के they were able to produce a price of less than 5 rupees per kilowatt hour. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे ये लगता है कि ये वो इकोनॉमिक चेंज है जिसकी वजह से अब हम लोग देखेंगे कि सोलर और विंड और बैटरी एकदम से भारत में बढ़ जाएंगे. दिक्कत है लैंड कहाँ से आएगा उसके लिए. दिक्कत है कि
ट्रांसमिशन लाइन कैसे आएंगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बनने में 3-4 साल लगते हैं और रिन्यूएबल्स बनने में, सोलर या विंड लगने में तो 2 साल लगते हैं। और जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आएगा, क्योंकि ऑल्दो द बिजली इस 5 रुपए से कम की है, लेकिन जो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा वो लगभग दुगना है जो कि कोयले के प्लांट में लगता है। तो हम लोगों को लैंड चाहिए, लाइन्स चाहिए और मनी चाहिए इन ऑर्डर टू अपस्केल इट to the level that we want. But in my view, the straw that broke the camel back has already happened. Yes, वो काफ़ी aggressive है. So I will tell you from my example. So most of the customers that we are working with Fitsol, so उनका सबसे पहले यही होता है ask कि can we move to renewable energy source? Energy क्या हम उसको वो कर सकते हैं renewable पे move? And there might be MSMEs also. Yeah. And they are very big companies also. तो सबके यही है and उनको लगता है ये करके definitely because उनको दिख रहा है there is a cost reduction. Yeah. And second लग रहा है कार्बन भी कम होगा क्योंकि बिल्कुल गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टैंड, CCTS स्कीम आ रहा है, आगे बहुत सारे स्कीम आ रहे हैं. सो दिस कंपनीज हैज आल्सो बिकम एग्रेसिव. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑन दैट कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे वांट टू स्टार्ट देयर डीकार्बोनाइजेशन जर्नी और दे वांट टू बिकम नेट जीरो, सो विथ पता नहीं कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम डिमांड. सो हाउ विल दिस जर्नी बी? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप बता सकते हो कि वेयर व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट ऑल इनिशिएटिव दे शुड टेक, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम. आनंद, पिछले 2-3 साल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ये एक प्रोग्राम चालू किया जिसको सोलर एक्स बोलते हैं. उसके थ्रू हम लोगों ने ये ट्राई किया कि जो आइडेंटिफाई करें जो नई कंपनियां हैं जो सोलर में हैं, उनको आइडेंटिफाई करें. क्यों? ताकि वी कैन बिल्ड अप देयर कैपेसिटी थ्रू एडवर्टाइजिंग. आई वुड लाइक सम ऑफ दीज कंपनीज टू बिकम द गूगल्स ऑफ टुमारो, टू रेज मनी एंड टू प्रोवाइड अ टेक्निकली वायबल प्रोडक्ट. हम लोगों ने ये चाहा कि उन कंपनीज को ढूंढ लें जो कि ऑलरेडी सामान बेच रही हैं आपको और मुझको. सो देयर इज ए पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे आर प्रोवाइडिंग. वो किस चीज में कर रहा है? टूनिशिया में हम लोग को एक कंपनी मिली जो कि इलेक्ट्रिक कार बना रही थी. वहाँ पर युगांडा में एक कंपनी मिली जो कि एक कुकिंग सिस्टम, लार्ज कुकिंग सिस्टम फॉर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना रही थी. टांजानिया में एक कंपनी मिली जो कि सोलर होम सिस्टम लगा रही थी. कीनिया में ऐसी कंपनी मिली जो कि सोलर कोल्ड स्टोरेज बना रही थी. तो कहने का मतलब ये है कि essentially the key is innovation. आप इनोवेट कीजिए, जो भी आप बना रहे हैं वो बिकेगा. यही डेवलपिंग कंट्रीज की खासियत है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बढ़ रही है और क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप अप विद डिमांड. तो किस प्रकार से आप जो भी बनाएंगे वो बिकेगा. अगर एट द एंड आपका कॉस्ट इज लेवलाइज्ड कॉस्ट इज द सेम और लेस देन अदर्स, ये रिन्यूएबल में बहुत बड़ी एडवांटेज है. हाँ, उसमें दिक्कत ये होती है कि फर्स्ट कॉस्ट इज मोर. तो फर्स्ट कॉस्ट, so in all of these companies either they themselves provide the first cost and lease it to users. लीज का मॉडल ये है कि जो पैसा हर महीने लेते हैं वो जो इतनी भी उनकी एनर्जी सेविंग्स है उससे कम लेते हैं. तो वो मॉडल भी कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसका जो एनर्जी पे पैसा जा रहा था वो कब कम जा रहा है. जैसे तुम कह रहे थे, लोग रिन्यूएबल एनर्जी क्यों लगाना चाहते हैं एमएसएमईज और बड़ी कंपनी, क्योंकि मेरा दाम कम हो गया. और नॉट ओनली दाम कम हो गया, आई हैव फ्रोजन माय एनर्जी प्राइस. क्योंकि मेरा जो दाम है वो तो अब हरदम के लिए हो गया. कोयले का दाम बढ़ता जाएगा,
जो गैस है उसका दाम बढ़ता जाएगा, लेकिन रिन्यूएबल्स का दाम फॉर एवर कॉन्स्टेंट हो गया, फिक्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक। तो इसलिए आप और मैं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक थर्ड पार्टी ढूंढ लें जो कि इसको फाइनेंस कर दे। अगर फाइनेंस कर दे तो फिर ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए इट इज लाभकारी है। यस, कंप्लीटली एग्री। सो जो आपने बात किया है, सो देयर इज वन मोर थिंग दैट हैज कम आउट एंड विच इज राइट नाउ राइजिंग अ लॉट इज हाइड्रोजन। आपने भी हाइड्रोजन पे काफ़ी काम किया आई थिंक, है ना? सो कैन यू जस्ट इनलाइटन अबाउट कि क्यों ये बेटर है एनवायरनमेंट के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और एनीथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन, एंड व्हाट एनी स्टार्टअप शुड लुक इनटू, या इनोवेशन क्या हो सकता है उसमें? देखिए, हाइड्रोजन को अगर आप यूज़ करें तो जब आप उसको जलाते हैं और हीट मिलती है तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है वाटर, H2O, और तो कुछ निकलता नहीं। ये बड़ा फायदेमंद है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तब नहीं निकलेगी जबकि इसको बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल है। तो इस तरह से बनाते हैं कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो कि सोलर से या विंड से मिले, उससे आपने पानी स्प्लिट कर लिया, पानी स्प्लिट करके हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, कोई भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब जब ग्रीन हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो उसमें सिर्फ पानी निकलता है। ये जो साइकिल है, दिस इज जीरो कार्बन साइकिल। तो दो जगह पर इनोवेशन हो सकता है। एक तो किस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन बनाएं जिसमें कम से कम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो। आज की तारीख में लगभग 55 यूनिट खर्च होती है 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में। थ्योरेटिकल मेरे ख्याल से 32 या कुछ है, तो 55 से 32 आप जा सकते हैं। दैट इज वन। द सेकेंड इज कि जिस समय हम वाटर को स्प्लिट करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से बेनिफिशियल कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइजर है, जो मशीन है जिसमें कि बिजली एक तरफ से जाती है, पानी दूसरी तरफ से जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती, ग्रीन हाइड्रोजन निकलती है, वो इलेक्ट्रोलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसमें कितना पानी इस्तेमाल हुआ ये कम कर सकते हैं। अब ये कहा गया कि इसमें पानी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपैरिजन में जितना भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं इन एग्रीकल्चर, अगर हम सारी एनर्जी नीड के लिए को पानी को स्प्लिट करके करें, वो जो पानी है वो 1/7 होगा जितना भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है इंडिया में। कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, पानी इज एन इशू बट इट इज नॉट एन इनसरमाउंटेबल इशू। तो जो इनोवेशन है, दो तरीके हैं उसके। एक तरफ तो आप बिजली कम खर्च करें और दूसरी तरफ पानी कम करें। ये और तीसरा भी ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ाएं। इन तीनों से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि ऑयल की जगह या बॉयलर में जो कोयला इस्तेमाल करते हैं उन सब में हीट की जगह इस हाइड्रोजन को जलाएं। आपने फ्यूल सेल का इंतजाम, फ्यूल सेल इज अ मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप फ्यूल सेल से गाड़ी चलाएं, ट्रक चलाएं, बहुत अच्छा है। ग्रीन हाइड्रोजन कैरी करें और उसको फ्यूल सेल में इस्तेमाल करें। मेरा अपना ये विचार है कि जितने भी हमारे ऑयल, हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आज की तारीख में अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पड़ती है लगभग $4 और $4.5 के बीच में, और जो नॉर्मल हाइड्रोजन है वो है $2 से कम, करीब $1.5 $2 की। ये हम लोगों को प्राइस रिडक्शन चाहिए है फॉर इट टू टेक ऑफ ऑन इट्स ओन। इस प्रकार से करें, यही पब्लिक पॉलिसी का चैलेंज है। But normal hydrogen, it doesn't make sense as a renewable source. वो या बेटर है कुछ? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली जो हम हाइड्रोजन बनाते हैं वो बनाते हैं गैस को ब्रेक करके।
तो गैस को जब ब्रेक करते हैं तो कार्बन तो आ ही गया। ग्रीन हाइड्रोजन में कार्बन नहीं, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। हाँ, ग्रीन सोर्स ही उसका हुआ है, करेक्ट, एग्री। नाउ कमिंग टू द सेक्शन वेयर, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली टू मी, मैं व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी इज आफ्टर द बर्थ ऑफ माय डॉटर 7 years बिफोर अगो, एंड NCR का पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है ना, एंड आई वाज इवन थिंकिंग कि आई विल मूव आउट ऑफ दिस NCR, आई विल गो टू सम विलेज और होम टाउन, ताकि मेरी बेटी का एक्चुअली जिंदगी बेटर है, उनकी लाइफ। सो मोस्ट ऑफ द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग, मे बी वी आर नॉट एबल टू रीप द बेनिफिट, क्योंकि 2050 या 20 इंडिया का 2070 टारगेट है ना, ग्लोबली 2050 वी आर टारगेटिंग, बट इट इज़ फॉर दैट जनरेशन। बिल्कुल। तो दैट जनरेशन, वो जनरेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है इस जर्नी में आगे, उनके लिए कुछ अगर इफ़ यू वांट टू say some points what they should do in their day-to-day life, or what they should lean towards, what they should learn, ताकि this is what we are doing for their future, they should also be worried about their future. जी, देखिए ऐसा है कि कुल मिला के मेरे हिसाब से 3 तो चीज़ें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज़, आप जितना हाई स्टार रेटिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो करिए। ओके। प्रिफरेबली 5 स्टार, इफ नॉट 5 स्टार देन 4 स्टार, 4 स्टार नहीं तो 3 स्टार, लेकिन जितना हाई आप अफोर्ड कर सकते हैं वो करिए। ओके। ये तो पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब ये स्टार का ही नहीं है, जैसे बिजली में आप LED लैंप इस्तेमाल करिए, CFL या एनर्जी कंजम्पशन कम करिए। बिना एनर्जी कंजम्पशन कम किए कोई हम लोगों को सोल्यूशन नहीं सस्टेनेबल होता। दूसरी चीज, अधिक से अधिक आस्क कि जो आपको बिजली मिल रही है वो रिन्यूएबल है कि नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑलरेडी जो हम लोग रिन्यूएबल से बिजली बना रहे हैं, रिन्यूएबल्स में सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज, उसके दाम कोयले से कम है। Ask your distribution company to provide you that renewable electricity. आपको पैसा अधिक नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आप मांगेंगे तो वो बनाई जाएगी, जब वो बनाई जाएगी तब आपको मिलेगी। सप्लाई डिमांड। ये तो 2 चीजें हैं तो ऐसी हैं जिससे कि आपका पैसा खर्च नहीं होगा बल्कि बचेगा। तीसरा, लुक एट गेटिंग इनटू बिजनेसेस दैट हेल्प द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने सोलर के कई सारे बताए थे, वेदर इट इज मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स और वेदर इट इज मेकिंग सोलर कुकर्स, और वेदर, अरे हिंदुस्तान में तो हम देख रहे हैं कि रोबोटिक क्लीनर्स बनने लगे हैं, जो कि एक तरफ से सोलर पैनल पे जाते हैं और साफ करते करते दूसरी तरफ तक चले जाते हैं। इस प्रकार के जो आवश्यकता है इंडस्ट्री की, उस आवश्यकता को आप पूरा करें अपने इनोवेशन के साथ। ये इसमें यस, यू विल नीड हेल्प, यू विल नीड एंटरप्रेन्योर्स, यू विल नीड वेंचर कैपिटल, लेकिन आज की तारीख में वेंचर कैपिटल इन कार्बन एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज मिल रहा है। आसान नहीं है लेकिन मिल रहा है। मेरा अपना ये विचार है कि ये 3 चीजें करके हम और आप दोनों इस जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। Completely agree. So I think most of this today's generation, they have started asking for sustainable products everywhere. पेपर होना चाहिए सस्टेनेबल, कोई भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग लॉट ऑफ स्टार्टअप मशरूमिंग जो कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बना रही हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के। इवन बिग ई-कॉमर्स ब्रांड्स दे हैव स्टार्टेड मेंशनिंग इन देयर वेबसाइट कि ये सस्टेनेबल है, इस पे इतना कार्बन एमिशन हुआ है, फ्लाइट्स पे इतना हुआ है, एंड आई थिंक इट्स द चॉइस ऑफ दिस जनरेशन, दे शुड स्टार्ट, आई थिंक इवन इफ दे हैव टू पे लिटिल बिट प्रीमियम right now, but they should start promoting or they should start adopting those startups or products जो कि सस्टेनेबल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना, ताकि ये आगे सप्लाई डिमांड जैसे जैसे यूज़ करेंगे उनके भी रेट्स कम होते जाएंगे।
या सो ये काफ़ी रियल इंसाइट्स थे उनके लिए. आई थिंक लास्ट इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ रैपिड फायर होगा. सिंपल सा. सो द क्लोजिंग रिमार्क इन द सेंस के व्हाट डू यू सी डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन यू कैन सी कि क्या चेंजेस हो गए हैं एनवायरनमेंट में, एंड डू यू थिंक कि जो स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं कि वॉट एवर गोल वी हैव टेकन टुवर्ड्स ग्लोबली 2050 का, डेफिनेटली आपने शुरू में बोला था 1.47 तो ऑलरेडी हो गया है, एंड 1.52 अगर पहुंच गया तब तो इरिवर्सिबल है. बट आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं होने देंगे. दो तो नहीं हो, दो तो, नहीं मतलब इस पे हम लोग को ठान लेना है कि दो नहीं होगा. सो ये तो हमें पता है, विजन तो ये है ही, आप भी वही देख रहे होगे, हम भी वही देख रहे हैं. बट अगर ये करना है तो व्हाट डू यू थिंक आर द फ्यू मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू हैपन? मेरे हिसाब से इसमें नंबर 1 तो उन देशों के लिए है, इंडिया इंक्लूडेड, जहां पर कि ग्रिड इज वेल डेवलप्ड. वहां पर यह आवश्यक है कि जितनी ज़्यादा बिजली हम जितनी जल्दी बना सकें रिन्यूएबल से और उसको स्टोर कर सकें दिन में जब सूर्य हो, ताकि रात में इस्तेमाल कर सकें. वो उस जर्नी पे हम लोगों को जल्दी से जल्दी जाना होगा. The good thing is that the Indian example has shown how this can happen. This is an example of policies, of mechanisms. Mechanisms के मतलब ये है जैसे कि इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन टूल बनाया जिसके थ्रू ऑक्शन कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक टूल हम लोगों को दुनिया भर में सर्कुलेट करना चाहिए. इसी प्रकार से जो हम लोगों की पॉलिसीज हैं वो दुनिया भर में और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दे आर वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है. इंडिया ने किया. आप ये सोचिए हम लोग रिन्यूएबल्स में कहाँ थे 2006, 2007, 2008 में. 20 मेगावाट सोलर था. 20,000 नहीं, 20. और अब कहाँ पहुंच गए? वी आर नियरली 100,000 मेगावाट्स. ये केवल पॉलिसी का कमाल है. These are policies that we can take to other countries. The other issue, the important issue is कि ये तो हो गया जो ग्रिड से कनेक्टेड है. जो ग्रिड से नहीं कनेक्टेड है वहां पर we have to place a much greater focus on distributed renewable options. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अफ्रीका में, इंडिया में डेवलप हो रहे हैं ऑप्शंस फॉर कुकिंग. दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ग्रिड, पर रिन्यूएबल्स के थ्रू, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे वो कूलिंग के लिए हो. जैसे कि उसमें क्या करते हैं, दिन में तो कूलिंग आपकी जितनी देर सन है उतनी देर तो बिजली बन रही है, कूलिंग हो रही है. रात में हाँ बैटरी से भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ फार चीपर कि आप पानी ठंडा कर लीजिए और उस ठंडे पानी से रात भर ठंडा रखिए कमरे को. तो कूलिंग थ्रू सोलर कैन बी डन. सिमिलरली वाटर पंपिंग थ्रू सोलर कैन बी डन. तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल ऑप्शंस हैं. इनको बढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है. तो वेदर इट इज, अनदर एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू इज, आज की तारीख में डीजल जेनसेट हर एक आदमी रखता है. हम लोग क्या सोलर जेनसेट का सोच सकते हैं जो दिन में सोलर से काम रखे, हाँ उसमें बैटरी भी हो ताकि रात में भी काम कर सके. सो diesel genset, solar cooling, solar pumps, solar mini grids, these are some of the options that we'll have to push to commercialization for the changeover in non 100% grid countries. दोनों ये चीजें मिला के I think we can make the world a different place. So I think sorry एक और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरे को बहुत आई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि इज इट, एंड आई हैव रेड इट इन ट्विटर, एक्स, एवरीवेयर, पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग नहीं,
the climate change is not a real issue. It's only being said by someone to promote something. So what, according to you, is it a science issue or people issue, or is it not an issue at all? According to few people over the internet, they are giving their point of view on this. देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अमेरिका और यूरोप के बीच का बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्रीज़, हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हों, चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़, बिग डेवलपिंग कंट्रीज़ हो लाइक इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, हम सब के यहाँ जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, दे आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट ऑलरेडी। हम लोगों के यहाँ पीपल लिव एट द मार्जिन ऑफ डेवलपमेंट। अगर बारिश समय पे नहीं हुई तो वो जो मैं बात कर रहा था धान की, वो कट नहीं पाता है। अब वो जो फार्मर है वो तो पिट गया। तो हम लोगों के यहाँ it is a real live burning issue. We don't call it climate change. We call it बारिश की वजह से, we call it सूखे की वजह से, we call it साइक्लोन की वजह से, लेकिन it is a real live burning issue. Correct. जो डेवलप्ड कंट्री है उनके यहाँ in a sense development has already occurred. They have also made the transition from an agrarian economy, matlab the number of people who are involved in agriculture and farming is far less than in developing countries. तो उन लोगों को जो इसका इम्पैक्ट है, ये नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं है। यूएस ने ये साइंस की जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल पे, कंट्रीज हैव टू प्रिपेयर एंड गिव टू द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, उसके हिसाब से द इम्पैक्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज्ड साइक्लोन ऑन द यूएस इज ह्यूज। लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, द जीडीपी ऑफ द यूएस, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। तो उन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट का इतना असर नहीं होता। लेकिन अधिकतर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो तो वही है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि इम्पैक्ट्स आर फेल्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज व्हाइल द इमिशंस आर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक तो ये दिस हैज कलर्ड द इशू, क्योंकि इट इज, so therefore it's a people's issue if you use the right words. Don't use the word climate, use the word water, use the word heat, use the word cyclone. It is an issue in India and other developing countries. Developed countries में issue ये होता है कि जैसे US है, US में तो there are large number of people who say climate is not an issue. मतलब जो आजकल यूएस के प्रेसिडेंट है वो तो इलेक्ट ही इसी बात पे हुए हैं। तो ये हम लोगों को, तो वहां पर उनका ये मानना है दैट दिस इज नॉट एन इशू, इट्स अ साइंस मेड इशू। बट अगर आप अक्रॉस द अटलांटिक जाएं टू यूरोप में भी इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, इम्पैक्ट्स का जो शेयर है वो उतना बड़ा नहीं है जितना डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन द पीपल सी क्लाइमेट चेंज एज एन इशू, सो द मूवमेंट ऑन रिन्यूएबल्स इज हैपनिंग इन यूरोप। मैंने पहले एग्जांपल दिया था जर्मनी का, किस प्रकार से जर्मनी ने इन्वेस्ट किया इन ब्रिंगिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर डाउन। यूरोप में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश ज्यादा है, वहां पर इट हैज बिकम अ पीपल्स इशू। आई वुड आर्ग्यू दैट यूजिंग द राइट वर्ड्स, इट्स अ पीपल्स इशू across the world. Although some people say it is not an issue at all, but it is an issue for people across the world. Completely agree. And we are seeing on daily basis news, cyclone,
ये जो आप बताते हैं हार्वेस्टिंग इशूज, फ्लडिंग रीजन, मे बी समवेयर, मतलब अनइवन, इवन वेदर चेंज इज सो अनप्रेडिक्टेबल नाउअडेज, सो डेफिनेटली देयर इज एन इशू। वो लोगों को दिख रहा है, बट लोगों को लग रहा था कि इट इज नेचुरल, बट है ना वो इशू है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये प्लान किया, क्योंकि बारिश का टाइम उतना फिक्स नहीं है कि हर गांव में तालाब बना दें, ताकि जिस वक्त बारिश हो तो पानी स्टोर कर ले और जिस वक्त आवश्यकता हो उस वक्त उसको इस्तेमाल करें। ये तभी बना जब ये रियलाइजेशन हुआ कि क्लाइमेट पैटर्न्स आर चेंजिंग। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, से पता चलता है बिल्कुल लोगों के पास है। So I would like to close this podcast. Definitely it was very very useful with some rapid fire questions. जहाँ या तो गोली चलाओगे मेरे ऊपर, गोली लगेगी, ठीक है? नहीं सर, ये बड़े सिंपल से है। Okay, so whatever we have learned about you, you complete most of the time you spend in the sustainability space. जी. So if not in sustainability, आपका करियर कहाँ होता? Which field you would be in? हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री। हाँ, तो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और इस बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि किस प्रकार से जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनको हिस्ट्री में कैसे सॉल्व किया गया। ओके, सो व्हाट इज वन सस्टेनेबिलिटी मिथ you wish we could retire for it? देखिए, एक जो बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी मिथ है वो है अराउंड द इशू ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट कैन बी मैनेज्ड। हम लोग नहीं करते लेकिन कर सकते हैं। हम लोगों ने जब सोलर का देखा तो ये देखा कि जो अर्बन वेस्ट है उससे तो केवल 1/10 निकलेगा। अरे तो हमने कहा 1/10 क्यों निकल रहा है? वो जो 10 टाइम्स है अर्बन वेस्ट वो भी क्यों नहीं यूज हो रहा है? हमने अपने घर में शुरू किया। अगर आप ऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट करें, उसकी खाद बनाएं, तो जो आपका रिसाइकलिंग वाला वेस्ट है वो हार्डली 200 ग्राम रोज निकलता है और वो सारा रिसाइकल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज सॉल्वेबल। इट इज नॉट अ इनसॉल्वेबल सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम। And completely agree. And there are lot of startups who started working in this waste management field. जी। अलग-अलग वेस्ट के लिए अलग-अलग startups काम कर रहे हैं। Okay, so so coming to next question is on that only. So any one piece of advice you would like to give early stage founders or startups working in clean energy space? देखिए, ऐसा है, perseverance matters. Yes. लोगों को कन्विंस करना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो because it is more sustainable is often challenging. क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन इट वर्क्स। इसमें सोचते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलते रहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लर्न फ्रॉम द मार्केट। इट वर्क्स। परसिवरेंस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन लॉट ऑफ द फाउंडर्स, एंड जो इस स्पेस में आई थिंक मे बी अभी उनको उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा होगा, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू इवॉल्व। एवरीबडी इज गोइंग टू रियलाइज कि दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस, तो ये आएगा ही आएगा। And coming to फिर next question, what is the one sustainability habit you think you can make mandatory across everyone? Mandatory। देखिए, मैंडेटरी में बाप मुझे डर लगता है। अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने केवल ये कहा कि एयर कंडीशनर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 की बजाय 20 डिग्री हो जाए। अरे 18 पे तो यू एंड आई कैन नॉट सर्वाइव। 20 तो कम से कम चाहिए है, बल्कि बच्चों के लिए और बुढ़ों के लिए तो 18 डिग्री कहते हैं कि रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर इतना ज्यादा इसका ऑपोजिशन हुआ, लेकिन गेटिंग अ टेम्परेचर जो भी आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर, मेरे लिए 27 डिग्री कंफर्टेबल है, हो सकता है आपके लिए 24 हो। यस।
लेकिन जितना अधिक से अधिक टेम्परेचर आप रख सकते हैं वो रखिए। सो एनी वन पर्टिकुलर हैबिट जो आपने लगाया है टू लीव मोर सस्टेनेबली, जो कि बाकी लोग भी कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अल्टीमेटली जिस चीज़ में आप में आज की तारीख में फ़र्क पड़ेगा इस वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप जो वेट वेस्ट है उसको अलग कीजिए, उसको खाद के लिए इस्तेमाल कीजिए, और जो ड्राई वेस्ट है कम से कम पैकिंग मांगिए। मैंने देखा कि अमेज़ॉन की पैकिंग अब सिर्फ एक बाहर लिफाफा होता और कुछ नहीं होता, और उसकी पैकिंग काफ़ी होती थी। हाँ, उन लोगों ने भी कम कर दिया। तो जितना भी आप रिसाइकलिंग कर सकें उतनी कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जितना इस्तेमाल करना कीजिए, और जो बाकी वेस्ट है उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ आप आज ही कर सकते हैं, और इससे आपके और आपके चारों तरफ के वातावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। Okay. So, what is one word that come to your mind when you hear about climate crisis? One word. Will humans survive? ये सवाल, अगर हम लोग 2 डिग्री के अंदर नहीं रह पाए, will humans survive is a question that bothers me. Yeah, I think you have worked a lot in this field, and if you would like to make, or you would like to adopt a title from Netflix, Amazon, कोई भी series about your life, what would be that title? इसमें देखिए थोड़ा, इसमें तो एक्चुअली I would like something which has to do with making change happen. तो टाइटल जो है इस तरह का कर दें, चेंज मेकर, इस तरह के टाइटल। आई थिंक एक कुछ आ भी रहा है सीरीज, कहीं पे मैंने देखा चेंज मेकर्स के एक सीरीज आते हैं। आई सी। सो रिलेट हो गया। ठीक है, तो फिर मतलब इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है। Okay, so on that note, I would like to end this podcast. Definitely, I learned a lot, and मुझे पता है audience ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. There is lot of output. You can say they can take lot of inputs from this podcast. How they can bring change to the world, how they can bring change to their lives. And to the audience, we would bring such guest, knowledgeable and entertaining guest in each and every podcast. That's an effort from the FitSol side, from where you can take some actionable insights which you can implement in your day-to-day, you can say operations if you are working for any company, or day-to-day your life as an individual also, to bring a change into the climate. Thanks a lot, sir, once again for. Namaskar.